Okay, the recording has now started. Now you can put your attendance and then we will continue. Okay, good. Now, Lavanya. Okay. So yeah, everyone just put your attendance. We will start. So our next topic is extraction of moderately reactive metals. Okay, so हमारा मेटलर्जी चैप्टर चालू है. इसमें बहुत सारा पोर्शन हमने कवर कर लिया है, बराबर. ओके, चलो ठीक है. सो सब लोगों ने अटेंडेंस लगा ली यहाँ पे. वेरी गुड. चलो, 4 स्टूडेंट ने लगा ली है. लावण्या, भैरवी, लक्ष्य एंड तन्वी. हु इज रिमेनिंग? ओम इज रिमेनिंग. ओम, पुट योर अटेंडेंस. Okay. So our next topic is extraction of moderately reactive metals. The metals in the middle of the reactivity series, such as iron, zinc, lead, copper, are moderately reactive. Usually, they occur in the form of their sulfide salts or carbonate. It is easier to obtain metal from their oxide rather than sulfides or carbonates. Therefore, the sulfide ore are strongly heated in the air to transform them into oxides. This process is called roasting. Carbonate ores are strongly heated in limited supply of air to transform them into oxides. This process is called calcination. Okay. Now, first of all, what are the moderately reactive metals? The metals which are not that much reactive. Okay, so if we think about highly reactive metals, so sodium, aluminium, and potassium, these are the metals that are highly reactive metals. Okay, and if we think about less reactive metals, so these are gold, silver, platinum. Okay, so मॉडरेटली रिएक्टिव मेटल्स कौन से हैं? आयरन, जिंक, कॉपर. मतलब कि इन पे बाकी जो सब्सटेंसेस है उनका ज्यादा असर होता भी है और होता भी नहीं है. ओके, दे आर मॉडरेटली रिएक्टिव मेटल्स. सो ये जो मेटल्स है, ये नेचर में किस फॉर्म में पाए जाते हैं? दे आर दे आर फाउंड इन फॉर्म ऑफ सल्फाइड सॉल्ट और कार्बोनेट. ओके, मतलब कोई भी मेटल का जो ओर रहता है उसमें कुछ गैंग रहता है, कुछ प्योर मेटल रहता है. सो उस ओर जो यहाँ पे सल्फाइड सॉल्ट है या फिर कार्बोनेट है उस मेटल का, दैट इज नथिंग बट द ओर. और उसमें जो एक्स्ट्रा मटेरियल है रेदर देन मेटल, दैट इज गैंग. सो वी हैव टू रिमूव दैट. ओके, सो टू रिमूव sulfide and carbonate, it is it is little hard to remove sulfide salt and carbonate, but we can extract the metal from their oxides easily. Okay, हमें उसको क्या करना पड़ेगा? उसको पहले उस सल्फाइड को या फिर कार्बोनेट को उस मेटल के ऑक्साइड में कन्वर्ट करना पड़ेगा. नाउ हाउ वी कन्वर्ट इट इनटू ऑक्साइड? we just heat them up. We strongly heat them up and they get transformed into their oxides. बराबर. सो इसे हम रोस्टिंग कहते हैं. अगर सल्फाइड ओर को अगर हीट करें तो उसे रोस्टिंग कहेंगे. कार्बोनेट ओर को अगर हम हीट करें तो उसे कैल्सिनेशन कहेंगे. सो रोस्टिंग में और कैल्सिनेशन में क्या क्या प्रोसेस होती है? देखिए, यहाँ पे जिंक सल्फाइड प्लस 3O2, मतलब 3O2 is what? We are heating it up and we are making that metal to react with oxygen. Okay, so what we are getting? Zinc oxide plus sulfur dioxide. Okay, so these things we are getting. कैल्सिनेशन प्रोसेस में क्या है? देखिए, ZnCO3, दैट मीन्स जिंक कार्बोनेट है. सो उसको अगर हम हीट करेंगे तो जिंक ऑक्साइड मिलेगा और CO2 जो है वो रिलीज होगा. सो द जिंक ऑक्साइड सो obtained is reduced to zinc by using suitable reductant such as carbon. सो जिंक ऑक्साइड को अगर हम कार्बन के साथ में मिक्स करें तो we will get zinc plus carbon monoxide. Okay, so this way we get the zinc, that is pure zinc. So we are interested in getting the metal only. ठीक है. सो इस तरह से मॉडरेटली जो एक्टिव मेटल्स है या फिर रिएक्टिव मेटल्स है उनकी
उनका एक्सट्रैक्शन इस तरह से होता है। किस तरह से होता है? पहले तो वो सल्फाइड के या फिर कार्बोनेट के फॉर्म में हमें मिलते हैं। We convert them into their oxides with the help of roasting or calcination. Okay, and uh, from that oxide we can remove the oxygen part by using a suitable reductant. Okay, for zinc oxide the carbon is the suitable reductant, and for other metals it might be something else. Apart from carbon, reactive metals such as sodium, calcium, aluminium are also used as a reducing agent for the reduction of metals to obtain the metal. This is because these metals displace a moderately reactive metals from its compound. For example, when manganese dioxide is ignited with aluminium powder, the following reaction takes place. Now, there we have an alternate way as well. इसमें क्या कर सकते हैं हम कि अगर हमारे पास किसी मेटल का ऑक्साइड अवेलेबल है, फॉर एग्जांपल यहाँ पे हमारे पास मैग्नीज ऑक्साइड है। ओके, अगर मैग्नीज ऑक्साइड हमारे पास अवेलेबल है, सो व्हाट वी विल डू, वी विल मेक दैट मैग्नीज ऑक्साइड रिएक्ट विथ हाईली रिएक्टिव मेटल्स। सो हाईली रिएक्टिव मेटल्स की प्रॉपर्टी क्या है कि उस मेटल को, उस पर्टिकुलर मेटल को वो उसके ऑक्साइड से रिप्लेस कर देते हैं। मतलब यहाँ से वो मैग्नीज को निकाल देंगे और खुद का ऑक्साइड बना लेंगे। सी, यहाँ पे मैग्नीज हमें मिला, 2Al2O3 मिला एंड हीट रिलीज हुई। ओके, सो identify the substances undergone oxidation and reduction in this reaction. The heat evolved in the above reaction is so large that the metal is formed in the molten state. Another similar example is the thermit reaction. Here iron oxide reacts with the aluminium to form iron and aluminium oxide. Okay, सो अगेन एल्यूमिनियम ऑक्साइड की भी अगर हम एल्यूमिनियम के साथ रिएक्शन करें, सॉरी आयरन, दैट इज आयरन ऑक्साइड की अगर हम एल्यूमिनियम के साथ रिएक्शन करें, सो एल्यूमिनियम विल रिप्लेस द iron from its oxide and will form oxide of itself, plus it will generate heat and it will give the pure metal, and the generated heat is that much that the pure metal we get in the form of liquid. Okay, so this is the process that is followed to extract moderately reactive metals from their ores. Now extraction of less reactive metals. So less reactive metals मैंने जैसे कि आपको बताया कौन से हैं. The metals at the bottom of reactivity series of metals are less reactive. That is why they are found in free state in nature. For example, gold, silver, platinum. The reserves of copper in free state are very few. Presently, copper is found mainly in form of copper sulfate. So copper is also a less reactive metal. Okay, but again there is some reaction with copper also. So copper जो है हमें copper sulfate के form में मिलता है. Copper sulfate is obtained from by just heating it in the air. अगर sulfate है तो sulfate को हम अगर heat करें तो what we will get? We will get its oxide. Okay, so कॉपर ऑक्साइड प्लस सल्फर डाइऑक्साइड हमें यहाँ पे मिलेगा। या फिर सी, कॉपर डाइऑक्साइड और सल्फेट ऑक्साइड, कॉपर सल्फेट को अगर हम फिर से ऐड करें तो क्या मिलेगा हमें? कॉपर प्लस सल्फर डाइऑक्साइड मिलेगा। ठीक है, सो इस तरह से लेस रिएक्टिव मेटल्स को एक्सट्रैक्ट किया जाता है। सो वी हैव लर्न मॉडरेटली रिएक्टिव मेटल्स को किस तरह से एक्सट्रैक्ट किया जाता है, लेस रिएक्टिव मेटल्स को किस तरह से एक्सट्रैक्ट किया जाता है फ्रॉम देयर ओर। नाउ रिफाइनिंग ऑफ द मेटल्स, हाउ द मेटल्स आर रिफाइंड। Metals obtained by various reduction processes described above are not very pure. They contain impurities. The impurities need to be separated to obtain pure metal. Electrolysis method is used to obtain pure metals from the impure metals. So electrolysis में क्या होता है कि जो मेटल है वो कैथोड पे जमा हो जाएगा और जो उसका गैंग रहेगा या फिर इंप्यूरिटी रहेगी वो एनोड पे कलेक्ट हो जाएगा। सो इलेक्ट्रोलिसिस की मदद से हम क्या कर सकते हैं, इस प्योर मेटल को हम एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं फ्रॉम द एक्सट्रैक्टेड, ऑलरेडी एक्सट्रैक्टेड मेटल्स। ओके, सो इसमें थोड़ी सी इंप्यूरिटी रह सकती है तो उस इंप्यूरिटी को किस तरह से निकाल सकते हैं। सो इलेक्ट्रोलिसिस इज दैट प्रोसेस। इलेक्ट्रोलिसिस की मदद से हम उस इंप्यूरिटी को निकाल सकते हैं। ठीक है, नाउ corrosion of metals. Old iron bars of buildings, copper vessels not cleaned for long time, silver ornaments or idols exposed to air for long time, old abandoned vehicle fit to be thrown away.
सो करोजन तो हमें पता है, वी आर फैमिलियर विद द करोजन। करोजन होता क्या है, मतलब कि मेटल पे एक लेयर आना शुरू हो जाती है, ओके, वेदर इट कैन बी ऑफ देयर ऑक्साइड और एनी अदर सब्सटेंस। सो इस लेयर को ही हम क्या कहते हैं, करोजन कहते हैं। रस्टिंग ऑफ आयरन आर्टिकल causes large financial loss, thus corrosion of iron, that is rusting, is the big problem. So we all know that आयरन को जो हम बोलते हैं ना जंग लग गया, या फिर मराठी में क्या बोलते हैं, गंज लागला है असं बोलतात ना, तर that is rusting of iron. Okay, so we have seen rusting of iron, yeah. So iron reacts with moist air and deposits of reddish substance, that is Fe2O3, H2O is formed on it. This substance is called rust. Carbon dioxide is moist. Carbon dioxide in moist air reacts with the surface of copper vessel. Copper loses its luster due to formation of greenish layer of copper carbonate on its surface. This is called patination of copper. Now, see, copper cladded Statue of Liberty made 300 years ago has turned green. So ये green क्यों हुआ? बिकॉज इस पे कॉपर कार्बोनेट की लेयर चढ़ना शुरू हो गई है। ओके, ये जो कॉपर है ना, तो इस यहाँ पे करोजन हो रहा है इस कॉपर का। तो जब ये स्टैचू ऑफ लिबर्टी बना था, दैट वाज शाइनी, मतलब वो चमकता था, लेकिन अभी वो इट इज गोइंग ग्रीनिश बिकॉज ऑफ द कॉपर कॉपर प्रेजेंट इन इट। ओके, सो कॉपर कार्बोनेट की एक लेयर उस पे बन रही है। ऑन एक्सपोजर टू एयर, silver articles turn blackish after some time. This is because the layer of silver sulfide Ag2S formed by the reaction of silver with hydrogen sulfide in the air. So सिल्वर का भी कुछ मात्रा में कोरोजन होता है यहाँ पे। सो दिस इज रस्टेड शाकल, मतलब कि जंग लगी हुई एक चेन हमें यहाँ पे दिखाई दे रही है। ओके, बाय ऑक्सीडेशन ऑफ एल्यूमिनियम, अ थिन लेयर ऑफ एल्यूमिनियम ऑक्साइड फॉर्म्स ऑन इट। सो अलग अलग मेटल्स के लिए रस्टिंग सॉरी करोजिव मटेरियल जो हो सकता है, या फिर करोजिव एलिमेंट जो होता है दैट कैन बी डिफरेंट। ओके, करोजिव एलिमेंट can be different. Now, how we can prevent corrosion? Various methods are used to protect metals from corrosion. Special attention is paid in almost all the methods so that iron does not rust. We can lower the rate of process of rusting of iron. Corrosion of metals can be stopped by keeping metals isolated from a direct contact with air. The prevention of corrosion can be achieved by various ways. Some of these methods are as follows. So how we can prevent corrosion? So few methods are given here. To fix a layer of some substance on the metal surface so that the contact of the metals with moisture and oxygen in the air is prevented and no reaction would occur between them. Okay, so how we can prevent a metal or iron from corrosing और रस्टिंग से हम उसे किस तरह से रोक सकते हैं कि उस पे एक कोई लेयर हम चढ़ा दे जिससे कि उस मेटल सरफेस का डायरेक्ट कांटेक्ट ना हो एयर के साथ में, और उससे रिएक्शन नहीं होगी एंड उससे करोजन या फिर रस्टिंग नहीं होगी। टू प्रिवेंट करोजन ऑफ मेटल्स बाय अप्लाइंग अ लेयर ऑफ पेंट, ऑयल, ग्रीस और वार्निश on their surface. For example, corrosion of iron can be prevented by this method. So these are the things that we can apply on the surface of metal so as to avoid the corrosion of that metal. Okay, now we cannot protect the articles permanently from rusting by painting them. The method of painting is suitable for short time. If there is a scratch on paint on the surface of the article, and if a small surface of metal comes in contact with air, the process of rusting starts below the layer of the paint. See, अगर हम किसी सरफेस पे पेंट कर भी दें, ओके, सो जब तक वहां पे वो पेंट अप्लाइड है तब तक तो वहां पे करोजन नहीं होगा, लेकिन जैसे ही उसपे कोई स्क्रैच पड़ जाए या फिर वो सरफेस एक्सपोज हो जाए टू एयर, देन द करोजन विल स्टार्ट और रस्टिंग प्रोसेस विल स्टार्ट। एंड वो जो जहां पे स्क्रैच पड़ी है सिर्फ वही पार्ट करोजन के अंडर नहीं आएगा, या फिर वही पार्ट रस्टिंग शुरू नहीं करेगा। द रस्टिंग विल स्टार्ट बिलो दैट मेटल, दैट पेंट एज वेल। ओके, मतलब अगर थोड़ा सा भी मेटल का पार्ट एक्सपोज हो जाता है टू एयर, सो दैट इज इनफ
to to corrode that metal completely under the paint as well. Why do new iron sheets appear shiny? सो अगर आपने कहीं कंस्ट्रक्शन के काम में देखा होगा तो जो आयरन शीट्स रहती है दे आर क्वाइट शाइनी, बहुत शाइनी रहती है. सो ये क्यों रहती है? corrosion can be prevented by putting a layer of non corrodible method on a corrodible method. This can be done in many ways. सो इसमें क्या किया जाता है? आयरन इज अ मॉडरेटली रिएक्टिव मेटल, ओके, बट करोजन से उसका बहुत ज्यादा नुकसान होता है आयरन का, ओके. और आयरन का यूज जो है वो मोस्टली कंस्ट्रक्शन के कामों में या फिर जनरल यूज में आयरन ज्यादा यूज होता है. सो इट इज नेसेसरी टू protect iron from rusting or from corrosion. So there are some methods like we can paint that metal, okay, or we can apply oil, grease or varnish on that metal so as to provide the protection from corrosion, okay. But still there are few that we can say disadvantages, or there are say flaws, okay. There are some flaws that can cause the corrosion of metals, like if there is a scratch on metal, the corrosion starts. So the sheets, the iron sheets we see that look shiny because a non-corrodible method or a non-corrodible metal or a thin layer of non-corrodible metal is put on the that particular iron sheets. मतलब आयरन से कम करोडिबल मेथड जो मेटल जो रहेगा उस मेटल की एक लेयर चढ़ाई जाती है आयरन शीट्स पे, सो दैट इट प्रिवेंट्स आयरन फ्रॉम रस्टिंग और इट प्रिवेंट्स द कोरोजन ऑफ आयरन. नाउ इन लेयर को अप्लाई करने की जो मेथड्स है, मतलब वो लेयर किस तरह से अप्लाई की जाती है, सो उसमें सबसे पहले आता है गैल्वेनाइजिंग. गैल्वेनाइजिंग इज द फर्स्ट मेथड. In this method, a thin layer of zinc is applied to prevent corrosion of iron or steel. For example, shining iron nails, pins, etc. In this method, corrosion of zinc occurs first because zinc is more electropositive than iron. After few rainy seasons, the zinc layer goes away and the iron gets exposed. Then iron starts rusting. Okay, so galvanizing में क्या किया जाता है? Galvanizing में जिंक की लेयर आयरन पे चढ़ाई जाती है. जैसे कि आपने देखा होगा नेल्स रहते हैं जिसे हम स्क्रूज कहते हैं, बराबर, वो शाइनी टाइप के रहते हैं बिकॉज दे हैव बीन अप्लाइड द लेयर ऑफ जिंक इन इट. और जो जिंक अप्लाई करने की मेथड है दैट इज गैल्वेनाइजिंग. गैल्वेनाइजिंग में देखिए क्या किया जाता है. सो दिस इज मेटल पीस, ओके, दिस इज आयरन पीस. इसमें कॉस्टिक क्लीनिंग की जाती है, मतलब अच्छी तरह से उसको क्लीन किया जाता है अगर कोई इम्प्यूरिटी वगैरह है उस मेटल में. उसके बाद में रिंजिंग यानी कि उसको वॉश किया जाता है. पिकलिंग, अगेन रिंजिंग. उसके बाद में फ्लक्स सॉल्यूशन यानी कि इस तरह का सॉल्यूशन जिससे कि वो जो हम मेटल का लेयर अप्लाई कर रहे हैं वो लेयर उसको स्टिक करे, दैट इज फ्लक्स सॉल्यूशन. फ्लक्स सॉल्यूशन अप्लाई करने के बाद में हम उस पे लेयर चढ़ा सकते हैं. तो फ्लक्स सॉल्यूशन अप्लाई करने के बाद में उसे ड्राई करने के लिए रख दिया जाता है उस मेटल पीस को. आफ्टर दैट जिंक बाथ में डुबाया जाता है, यानी कि जो मोल्टन जिंक रहता है उसमें उसको डुबाया जाता है और देन इट इज कूल किया जाता है, देन इट इज फॉर इंस्पेक्शन. ओके, सो दिस इज द प्रोसेस ऑफ गैल्वेनाइजिंग. इतने सारे स्टेप्स में से जाना पड़ता है एक मेटल को टू अप्लाई अ जिंक लेयर ऑन इट. नाउ द नेक्स्ट प्रोसेस इज टिनिंग. In this method, a layer of molten tin is deposited on metals. We call this as a kalhai. A greenish layer forms on the surface of copper or brass vessels. This greenish layer is poisonous. If buttermilk or curry is placed in such a vessel, it gets spoiled. Tinning is done to prevent all such damages. Okay, so जो हमारे कॉपर मेटल्स रहते हैं या फिर ब्रास वेसल्स रहते हैं उसमें एक जो ग्रीनिश लेयर हमें दिखती है जिसे कि हम आपने देखा होगा अगर आपके घर में कोई कॉपर का वेसल है तो उसको धोने के लिए एक पर्टिकुलर साबुन मिलता है जिसे कि पीतांबरी कहा जाता है, या फिर वी कैन वॉश दैट वेसल विद द हेल्प ऑफ लेमन और लेट अस से
टैमरिंड, ओके, मतलब कि इमली की मदद से या फिर नींबू की मदद से हम उसको धोने की कोशिश करते हैं। वाई? बिकॉज वो जो लेयर रहती है, ग्रीनिश लेयर, दैट इज वेरी पॉइजनस एंड दैट कैन बी रिमूव विद द हेल्प ऑफ दीज क्लीनिंग मेथड्स। सो ये जो लेयर रहती है ये इतनी पॉइजनस रहती है कि यानी कि अगर उसमें हम कोई बटर मिल्क यानी कि दही वगैरह अगर हम रखें तो वो खराब हो जाएगा। ओके, इट विल गेट स्पॉइल्ड एंड इट इज वेरी harmful to eat as that kind of buttermilk. Okay, so tinning is done to prevent all such damages. अगर कॉपर के वेसल पे टिनिंग किया है तो वो जो ग्रीनिश लेयर है वो उस पर कभी आएगी ही नहीं। दैट ग्रीनिश लेयर इज पॉइजनस एंड आवर वेसल इज सेफ टू यूज फॉर आवर डे टू डे पर्पजेस। ओके, सो मोस्टली हमें अवॉइड करना चाहिए, अगर कोई कॉपर वेसल है तो उसमें खाना रखने से हमें उसे अवॉइड करना चाहिए, या फिर उसमें पानी भी हम ना रखें तो ही बेटर है। ओके, सो एनोडाइजेशन क्या है? इन दिस मेथड metals like copper aluminum are coated with the thin and strong layer of their oxides by means of electrolysis. For this the copper or aluminum article is used as an anode. As this oxide layer is strong and uniform all over the surface, it is useful for prevention of corrosion of metals. So देखो, कॉपर या फिर एल्यूमिनियम को एनोडाइजेशन के हम मदद से हम कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं? अगर कॉपर को, सॉरी, एल्यूमिनियम को अगर हम हमें प्रिवेंट करना है, सो हमें एल्यूमिनियम को प्रिवेंट क्यों करना है? बिकॉज उसका करोजन हो जाएगा और एल्यूमिनियम ऑक्साइड फॉर्म हो जाएगा, बराबर। सो इसको प्रिवेंट करने के लिए हम उसे या फिर इसको प्रिवेंट करना ही यानी करोजन होने से प्रिवेंट करना हम कहते हैं। क्या होगा अगर हम एल्यूमिनियम के सरफेस पे एल्यूमिनियम ऑक्साइड की लेयर चढ़ा दें? ओके, एल्यूमिनियम ऑक्साइड की लेयर अगर हमने उस पर चढ़ा दी तो एल्यूमिनियम ऑक्साइड का तो ऑक्साइड नहीं बनेगा ना, ऑलरेडी एल्यूमिनियम ऑक्साइड वहां पे प्रेजेंट है। सो वो जो अंदर जो एल्यूमिनियम है वो बच जाएगा। ओके, सो दिस इज द प्रोसेस कॉल्ड एनोडाइजेशन। एनोडाइजेशन क्या? इलेक्ट्रोलिसिस में एक कैथोड रहता है, एक एनोड रहता है। एनोड पे हमें पता है ऑक्साइड हो या फिर हाइड्रोजन हो या फिर जो भी लेट अस से नॉन मेटल्स है वो जमा होते हैं। ओके, और कैथोड पे क्या जमा होता है? कैथोड पे जमा होता है प्योर मेटल। सो यहाँ पे एल्यूमिनियम को अगर हम एज अ एनोड यूज करें इन इलेक्ट्रोलिसिस, देन aluminum oxide layer will be formed on the aluminum surface. Okay, so when aluminum is anodized, the thin layer of aluminum oxide is formed. It obstructs the contact of aluminum with the oxygen and air. This prevents further oxidation. This protection can be further increased by making the oxide layer thicker during the anodization. Okay, so anodization process आपको I hope समझ में आ गई है। Now next process is electroplating. Okay, so before that just give me a few seconds, I'll be right back. Okay. I hope my screen is again visible, is it? Okay, okay, good, thank you. So the next method is electroplating. In this method, a less reactive metal is coated on a more reactive metal by electrolysis. Silver plated spoons, gold plated ornaments are the examples of electroplating. Electroplating यानी कि क्या? लेस रिएक्टिव मेटल्स लाइक सिल्वर हो, गोल्ड हो, अगर उनकी लेयर हम किसी मेटल पे चढ़ा दे तो गोल्ड और सिल्वर तो इजीली रस्ट नहीं होते हैं, उनका करोजन नहीं होता है, so they will prevent the another metal from corrosing as well. Okay, so this is the electroplating. Now alloying. Majority of metallic substances used presently are in the form of alloy. The main intention behind this is to decrease the intensity of corrosion of metals.
This homogeneous mixture formed by mixing a metal with other metals or non-metals in a certain proportion is called an alloy. For example, bronze is an alloy formed from 90% copper and 10% tin. Bronze bronze statues do not get affected by sun and rain. Stainless steel does not get stained with air or water and also does not rust. It's an alloy made from 74% iron, 18% chromium, and 8% carbon. In recent times, various types of alloy are used for minting coins. Okay. सो एलॉय का सबसे पहले एलॉय क्या है? एलॉय यानी मिक्सचर ऑफ वन और टू और मोर देन टू मेटल्स. ओके, सो अगर इनको मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, इट कैन बी मेटल्स और नॉन मेटल्स. ओके, सो दिस इज एलॉय. होमोजीनियस मिक्सचर यानी कि क्या कि उनका जो मिक्सचर है मतलब कंप्लीटली दे हैव डिसॉल्व्ड इनटू ईच अदर. ओके, सो वी कैन नॉट सेपरेट देम. होमोजीनियस यानी कि क्या, वी कैन नॉट सेपरेट देम. सो दिस मिक्सचर इज कॉल्ड एलॉय. सो एलॉय की सबसे महत्वपूर्ण या फिर सबसे बढ़िया प्रॉपर्टी क्या होती है कि उन पे रस्टिंग नहीं होती है या फिर उनका करोजन ज्यादा नहीं होता है. ओके, सो एक एलॉय है दैट इज ब्रॉन्ज. ब्रॉन्ज इज एलॉय which is formed by 90% copper and 10% tin. So this is bronze alloy. Okay, now it is an alloy made from seven. Okay, so which alloy they are talking about? Stainless steel. Stainless steel, all of us have seen this is it. हम सब लोगों ने देखा है स्टेनलेस स्टील क्या होता है. सो ये किससे बनता है? 74% आयरन होता है उसमें, 18% क्रोमियम होता है और 8% कार्बन होता है. सो इस तरीके से stainless steel बनता है. Okay, now do you know when one of the metals in alloy is mercury, the alloy is called amalgam. For example, sodium amalgam, zinc amalgam, etc. Silver amalgam was earlier used by dentists. Gold amalgam is used for extraction of gold. Okay, so these are the alloys. alloy इसको कहते हैं. ओके, सो amalgam यानी कि क्या? amalgam is a alloy in which one of the metal is mercury and other metal can be anything. Okay, like iron, copper, whatever it may be. Okay, so that is amalgam. So with this we have completed this chapter as well. Okay, so we will start not carbon compounds. हम carbon compounds chapter start नहीं करेंगे. We will start the last chapter, that is स्पेस मिशन. ओके, आफ्टर दैट देखिए हमारे कौन से चैप्टर बच रहे हैं. हमारा थर्ड चैप्टर बाकी है एंड नाउ दिस चैप्टर इज रिमेनिंग, नाइन्थ चैप्टर. ओके, सो हम डायरेक्टली 10th चैप्टर शुरू कर रहे हैं, दैट इज स्पेस मिशंस. लेट मी गो टू द चैप्टर. ओके, सो स्पेस मिशंस. सो स्पेस मिशंस ये जो चैप्टर है ये बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है, एटलीस्ट फॉर मी. ओके, आप लोगों को कितना इंटरेस्ट है स्पेस में मुझे पता नहीं, लेकिन मुझे बहुत इंटरेस्ट है स्पेस मिशंस में. ओके, सो कल आप लोग मोस्टली ज्वाइन करेंगे बेसिक एस्ट्रोनॉमी का कोर्स जो है वो संतोष सर उसमें लेक्चर देने वाले हैं, बराबर. सो आपको स्पेस के बारे में बहुत ज्यादा जानकारी मिलेगी कल भी. ओके, एंड इस चैप्टर में भी आपको बहुत कुछ दिया गया है अबाउट स्पेस मिशंस. ओके, नो स्पेस मिशंस में देखिए हमें क्या क्या सीखना है. कौन से स्पेस मिशन अब तक कंडक्ट हुए हैं. उसके बाद में आर्टिफिशियल सैटेलाइट क्या होता है, क्लासिफिकेशन ऑफ आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स हमें देखना है, ऑर्बिट्स ऑफ आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स, satellite launch vehicles, space missions away from the earth. Okay, so this is very interesting chapter in my perspective. Okay, what is the difference between space and sky? तो बताइए स्पेस में और स्काई में डिफरेंस क्या है, किसको पता है? Who can tell what is the difference between space and sky? If you want to tell, then you can just put your name in the chat box. Nobody knows. Okay, sky can be seen with naked eye, space cannot be. Okay, that is a very good definition. स्पेस और स्काई में
क्या डिफरेंस है? ओके नाउ और कोई ट्राई करना चाहेगा? बताइए, सोचिए थोड़ा सा, इंटरेस्टिंग चैप्टर बोला ना मैंने। नहीं, ठीक है। तो देखिए स्काई क्या होता है? स्काई आपको किस कलर का दिखता है? विच कलर स्काई? स्काई आपको किस कलर का दिखता है? ब्लू कलर का दिखता है। ब्लू कलर का क्यों दिखता है? व्हाई इट इज ब्लू? व्हाई इट इज ब्लू? व्हाई द स्काई इज ब्लू? बिकॉज ऑफ स्कैटरिंग ऑफ लाइट। बराबर, स्कैटरिंग ऑफ लाइट की वजह से स्काई हमें ब्लू दिखता है। हमने सीखा है ना, डिस्पर्शन होता है प्रिज्म की वजह से, बराबर ना। सो इसकी वजह से स्काई ब्लू दिखता है। सो द रीजन इन विच सैटेलाइट सनलाइट इज स्कैटर्ड इन इन द अर्थ एटमोस्फेयर, मतलब कि अर्थ के एटमोस्फेयर की वजह से सनलाइट स्कैटर होती है और हमें ब्लू स्काई दिखाई देता है। और द ब्लू रीजन जो दिखाई देता है दैट इज स्काई। एंड व्हाट इज स्पेस? स्पेस इज बियॉन्ड दैट, मतलब कि स्काई के बाद में जो रहेगा दैट इज स्पेस। सो स्काई में और स्पेस में डिफरेंस क्या है कि स्काई इज द रीजन इन विच सनलाइट इज स्कैटर्ड इन अर्थ एटमोस्फियर, ओके, एंड स्पेस इज बियॉन्ड दैट। ओके, सो स्पेस में स्कैटरिंग ऑफ लाइट नहीं होती है, ठीक है, स्काई में होती है बिकॉज ऑफ द इन्वायरमेंट प्रेजेंट। नाउ व्हाट आर द डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स इन द सोलर सिस्टम? व्हाट आर डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स? बताइए, आप लोगों को क्या पता है कि सोलर सिस्टम में हमारे क्या क्या प्रेजेंट है फिलहाल? आई एम टॉकिंग अबाउट सोलर सिस्टम। प्लैनेट्स, वेरी गुड तन्वी, प्लैनेट्स, ओके, लावण्या, ठीक है। बाकी प्लैनेट्स एंड देयर सैटेलाइट्स, बराबर, अर्थ का सैटेलाइट है मून, उसी तरह से जुपिटर के कुछ सैटेलाइट है, सैटर्न के भी कुछ सैटेलाइट हैं, एस्टेरॉइड्स, वेरी गुड, ड्वार्फ प्लैनेट्स, प्लूटो इज आल्सो अ ड्वार्फ प्लैनेट दैट इज ऑफ या एस्टेरॉइड बेल्ट में क्या होता है? एस्टेरॉइड्स होते हैं। और सोलर सिस्टम में सबसे मेन ऑब्जेक्ट जो है दैट इज सन, स्टार, ओके, जो कि भैरवी ने बताया, वेरी गुड। नाउ व्हाट इज मीन बाय अ सैटेलाइट? व्हाट इज मीन बाय अ सैटेलाइट? So satellite is a body which revolves around a planet which is smaller as compared to that planet. Okay, so that is a satellite. Satellite can be artificial as well as natural as well. How many natural satellites does the Earth have? So we all know that. How many natural? Only one. Which one? That is our moon. Is it? So man has always been curious about unknown places, and he has always been eager to expand the horizons of the knowledge by exploring the unknown world. He must have had deep curiosity about the space and many twinkling stars in the dark sky. He must have had dreams to fly to the space and must have been working for that. Okay. सो जैसे कि हमें पता है, हमें आप हो या फिर मैं हूं, हमें नई नई चीजों पे जाके वो वो जगह है एक्सप्लोर करना अच्छा लगता है, बराबर, हमें ट्रैवलिंग अच्छी लगती है, जो जगह हमने देखी नहीं है वो उस उन जगहों पे जाके हमें उन जगहों को देखना अच्छा लगता है, बराबर। सो इसी तरह से जब हम, मतलब जो शुरुआत में इंसान था उसे जो चीजें उसने देखी नहीं है वो उसे देखने की उत्सुकता हो रही थी कि जो आकाश में स्टार्स दिखते हैं या फिर प्लैनेट दिखते हैं, सो वहां पे जाके क्या रहेगा या फिर वहां पे क्या है, इसकी उत्सुकता जो है वो इंसान के मन में थी। तो इस डायरेक्शन में उसने सपने देखना शुरू किया कि क्या होगा अगर हम उड़ पाए, हम फ्लाई कर पाए, हम स्पेस में जा सके, वहां पे क्या है वो देख सके। सो इस डायरेक्शन में उसने काम करना भी शुरू कर दिया। ओके, सो सबसे पहले, ठीक है, उड़ने का जो सपना है वो किन लोगों ने देखा था, मतलब उनका नाम क्या था? राइट ब्रदर्स था, बराबर, राइट ब्रदर्स था। उन्होंने सबसे पहले एक एरोप्लेन बनाया था, ठीक है। उनकी इंस्पिरेशन क्या थी कि बर्ड्स थी। उन्होंने देखा कि बर्ड्स हवा में उड़ते हैं, उनके दो पंख होते हैं, बराबर, और उनको ऊपर से जो नीचे का नजारा है वो बहुत अच्छा दिखता होगा।
क्या होगा अगर इंसान भी उड़ सके, ओके, तब उन उन लोगों ने सोचा था लगभग 100 साल पहले, ओके, बिफोर 100 ईयर्स उन्होंने सोचा था। सो उन्होंने पहला जो एरोप्लेन है वो डेवलप किया, और उसके लगभग 50 साल बाद, या फिर लेट अस से 40 to 45 ईयर्स आफ्टर, द स्पेस मिशंस स्टार्टेड, ओके, मतलब स्पेस मिशंस जो है वो स्टार्ट होना शुरू हुआ। स्पेस मिशंस एक्चुअल में स्टार्ट कब हुए आपको पता है? स्पेस मिशन स्टार्ट हुए 1955 में। स्पेस मिशंस कब स्टार्ट हुए? 1955 में स्टार्ट हुए। और सबसे पहला स्पेस मिशन में या फिर स्पेस में जाने वाला जो हम देश कहेंगे, दैट वाज रशिया, यूएसएसआर, जिसे कि कहते हैं यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ रशिया, ओके, यूएसएसआर। सो रशिया जो है वो सबसे पहला स्टेट था जो कि स्पेस में जा चुका था। नो स्पेस मिशंस देखते हैं हम। Substantial developments in technology, especially space technology, in the later half of 20th century resulted in the development of spacecrafts, making space voyage possible. Since then, more than 1,000 artificial satellites have been placed into orbits around the Earth. Additionally, space missions have been undertaken for close observations of various objects in solar system. We will learn about all this in the chapter. Okay, so space missions किस तरह से शुरू हुई? पहले तो उत्सुकता थी हमें देखने की कि आउटर स्पेस में क्या है, ओके। नो स्पेस, अभी अगर हम आज की बात करें तो देर आर थाउजेंड्स ऑफ सैटेलाइट्स दैट आर रिवॉल्विंग अराउंड आवर अर्थ, ओके। एंड वो जो सारे सैटेलाइट्स है, आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स, वो सारे सैटेलाइट्स इंसान के द्वारा लॉन्च किए गए हैं विद द हेल्प ऑफ स्पेस मिशंस। We can classify the space mission into two categories. In one type of missions, the objective is to put artificial satellites in the orbit around the Earth for research and various other useful applications. The objective of second type of mission is to send spacecraft to outer space for close observation and understanding of objects in the solar system or even outside solar system. Okay, so देखिए दो तरह के स्पेस मिशन कैसे रहते हैं कि एक टाइप का स्पेस मिशन रहता है जिसमें हम सैटेलाइट को लॉन्च करते हैं एंड दैट सैटेलाइट रिवॉल्व्स अराउंड द अर्थ इन इट्स ओन ऑर्बिट, ओके। उस सैटेलाइट की एक खुद की ऑर्बिट रहती है जो कि हम ही उसे देते हैं, और उस ऑर्बिट में वो घूमता रहता है और अर्थ के लिए काम करता रहता है। दैट इज फर्स्ट टाइप। नाउ सेकंड टाइप इज व्हाट? सेकंड टाइप में हम हमारे अर्थ के ग्रेविटेशन फील्ड के बाहर जाके, मतलब कि दूसरे प्लैनेट्स हो या फिर स्टार्स हो, इनको एक्सप्लोर करने की कोशिश करते हैं। दैट इज अनदर टाइप ऑफ स्पेस मिशन। जैसे कि आपने मिशन मंगल मूवी देखा होगा, जिसमें कि हमारे आईएसआरओ ने, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन ने मार्स पे एक ऑर्बिटर भेजा था, बराबर। इसके उसके फर्स्ट अटेम्प्ट में ही हमने मार्स पे एक ऑर्बिटर भेजा था। उसी तरह से नासा का भी आपने नाम सुना होगा। नासा ने भी ऑर्बिटर भी लॉन्च किए हैं मंगल के लिए। उसके बाद में एक लैंडर भी है, उनका रोवर भी है, ओके। क्यूरियोसिटी नाम का रोवर है, अगर आप यूट्यूब पे देखना चाहे तो क्यूरियोसिटी डाल सकते हैं। सो उसमें आपको नासा का रोवर दिखाई देगा, दैट 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 रोम्स अराउंड द मार्स, ओके। सो यही नहीं, अभी मार्स जो है, मार्स तो हमारे सोलर सिस्टम के अंदर है, लेकिन हमने सोलर सिस्टम के बाहर भी हम सोलर सिस्टम के बाहर भी जा चुके हैं। कैन एनीवन टेल द नेम ऑफ द स्पेसक्राफ्ट दैट वेंट आउट ऑफ द सोलर सिस्टम? किसी को पता है कि ऐसा कौन सा स्पेसक्राफ्ट है जो कि हमारे सोलर सिस्टम के बाहर जा चुका है? दैट इज द ओनली that is the one and only spacecraft that has gone outside our solar system. Anyone knows? Yes, no? किसी को पता है? No. Okay, भैरवी को नहीं पता है, no problem, ठीक है। So Voyager 1, मैं यहाँ पे नाम लिख रहा हूँ। See, Voyager 1 is the spacecraft. Yes, okay, तन्वी ने बताया नासा का वॉयेजर 1 जो है वो हमारे सोलर सिस्टम के बाहर जा चुका है, ओके। और इसकी जो स्टोरी है वो बहुत इंटरेस्टिंग है, आप यूट्यूब पे देख लीजिए, आपको बहुत इंटरेस्ट आएगा वॉयेजर 1 की स्टोरी सुनने में, ओके। तो मैं यहाँ पे स्टोरी नहीं बताऊंगा। डू यू नो द फर्स्ट पर्सन टू गो इनटू द स्पेस इन अ स्पेसक्राफ्ट वाज यूरी गागारिन।
ऑफ द देन यूएसएसआर, मतलब कि रशिया की यूरी गागारिन जो थे वो सबसे पहले एस्ट्रोनॉट थे। ही ऑर्बिटेड द अर्थ इन 1961। देखिए 1961 यानी कि आज से लगभग 60 साल पहले, 60 years बिफोर, 60 years ago, the the astronaut Yuri Gagarin orbited the Earth. First person to step on the moon, that is in 1969, was Neil Armstrong of USA. सो 1969 में या फिर 1969 में चांद पे पहला कदम रखने वाले इंसान कौन थे? नेल आर्मस्ट्रॉन्ग थे। एंड ही वाज फ्रॉम यूएसए, दैट इज अमेरिका, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। राकेश शर्मा ऑफ इंडिया ऑर्बिटेड द अर्थ इन 1984 इन अ रशियन स्पेसक्राफ्ट। सो राकेश शर्मा जो है वो भारत के पहले और ओनली, मतलब कि वही है जो कि स्पेस में जा चुके हैं। तो अभी आप लोग बोलेंगे कल्पना चावला एंड सुनीता विलियम्स ऑफ इंडियन ओरिजिन also participated in space exploration through missions organized by NASA. National Aeronautics and Space Administration is the long form of NASA of USA. Okay, so कल्पना चावला और सुनीता विलियम्स को हम कंसिडर नहीं करते हैं क्या? They were the citizen of America but they were of Indian origin. Okay, वो इंडियन ओरिजिन के थे, लेकिन वो जो गए स्पेस में कल्पना चावला और सुनीता विलियम्स, दे वेंट विद द हेल्प ऑफ नासा, मतलब कि उनमें उनके जाने में इंडिया का कोई भी रोल नहीं था स्पेस में जाने में। ओके, दे वेंट बाय देयर सेल्फ। लेकिन जो हमारे राकेश शर्मा थे, जो 3 अप्रैल 1984 को 3 अप्रैल 1984 को रशियन स्पेसक्राफ्ट में स्पेस में जाने वाले पहले और अकेले इंडियन है। ओके, राकेश शर्मा के बाद में कोई भी इंडियन स्पेस में नहीं गया है। कल्पना चावला एंड सुनीता विलियम्स आर ऑफ इंडियन ओरिजिन बट दे आर नॉट इंडियंस। ओके, और वी कैन से दे आर नॉट इंडियन सिटीजन्स। ठीक है, सो दिस इज द डिफरेंस that is between Rakesh Sharma and Kalpana Chawla. Which type of telescope are orbiting the earth? Why it is necessary to put them in space? Now it is very very interesting question. Which type of telescopes are orbiting around the sun? So ठीक है, टाइप कौन सा है छोड़ दीजिए। Which telescope is orbiting the earth? कोई बता सकता है कौन सा टेलीस्कोप है जो कि अर्थ के अराउंड और रिवॉल्व कर रहा है? किसी को पता है? नहीं। हबल स्पेस टेलीस्कोप सुना है? हबल स्पेस टेलीस्कोप, हैव यू हर्ड अबाउट हबल स्पेस टेलीस्कोप? यस, हबल स्पेस टेलीस्कोप इज द टेलीस्कोप that is revolving around the earth, revolver or orbiting around the earth। और इस टेलीस्कोप का काम क्या है बताइए? ये टेलीस्कोप का काम क्या है? क्या क्या करता है टेलीस्कोप? ये टेलीस्कोप जो हमारे सोलर सिस्टम के दूर प्लैनेट्स है या फिर स्टार्स है, गैलेक्सीज है, इन गैलेक्सीज की, इन स्टार्स की वो इमेज कैप्चर करता है एंड दैट सेंड्स अस टू अर्थ। इमेज कैप्चरिंग, वेरी गुड। गैलेक्सीज हो या फिर स्टार्स हो, सो इसी की वजह से ये जो हबल स्पेस टेलीस्कोप है, इस टेलीस्कोप की वजह से ही हमें ज्यादातर चीजें पता है अबाउट स्पेस। मतलब जो कुछ हम अभी स्पेस के बारे में जानते हैं ना, कि हमारे प्लैनेट सोलर सिस्टम में 8 प्लैनेट्स है, नोवा जो है वो डार्क प्लैनेट है, हम मिल्की वे गैलेक्सी में हैं, हमारी साइड में एंड्रोमेडा गैलेक्सी है, नियरेस्ट गैलेक्सी टू अस इज एंड्रोमेडा गैलेक्सी। ये सारी चीजें हमें किसकी मदद से पता चली ही? ये सारी चीजें हमें पता चली बिकॉज ऑफ हबल स्पेस टेलीस्कोप। ओके, और हबल स्पेस टेलीस्कोप लगभग पिछले 20 सालों से स्पेस में है और 10 साल वो स्पेस में रहेगा, हबल स्पेस टेलीस्कोप। ओके, और अभी नासा ओरेक्स टेलीस्कोप लॉन्च करने की तैयारी में है। किसी को पता है जो नया टेलीस्कोप नासा लॉन्च करने वाली है उस टेलीस्कोप का नाम क्या है? जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप। ओके, जेम्स वेब space telescope is the new telescope that NASA is planning to send it to the space। okay, so ये जो जेम्स वेब टेलीस्कोप है ये बहुत ही पावरफुल टेलीस्कोप है। ये हबल स्पेस टेलीस्कोप से
कई ज्यादा पावरफुल टेलीस्कोप है। सो जैसे ही ये टेलीस्कोप स्पेस में जाएगा तो क्या होगा, हमें हमारे यूनिवर्स के बारे में और ज्यादा चीजें मालूम मालूम होगी। ओके, मतलब हमें अभी बहुत सारी जानकारी है, लेकिन बहुत सारी जानकारी होने के अलावा भी बहुत सारी जानकारी हमें नहीं है। ओके, हम जो कुछ जानते हैं दैट इज लेट अस से 1% ऑफ द यूनिवर्स और लेस देन दैट, 99% और मोर देन दैट स्पेस और यूनिवर्स इज अननोन टू अस, हमें पता नहीं है उसके बारे में। ठीक है, सो जो जेम्स वेब टेलीस्कोप है वो हमें मदद करेगा। नाउ where does the signal in your cell phone come from, where from does it come to mobile towers, where does the signal to your TV set come from? You may have seen photographs showing the position of monsoon clouds over the country in the newspaper. How are these images obtained? Okay, so ये तो इसका तो सिंपल क्वेश्चन है हमारे पास कि आपके पास गूगल मैप है, गूगल मैप में आप देख सकते हैं कि सैटेलाइट व्यू में आपको सब कुछ दिखाई देगा, बराबर। आपका घर दिखाई देगा, आपके घर के सामने कोई पेड़ है या फिर वेल है, कोई लेक है, रिवर है, ये सारी चीजें हमें दिखाई देती है, बराबर। अगर आपने गूगल मैप कभी देखा है तो ये कहाँ से मिला, ये जो फोटोग्राफ्स है ये गूगल मैप को कहाँ से मिले? फ्रॉम द सैटेलाइट्स दैट वी हैव लॉन्च इनटू द स्पेस। हमने सैटेलाइट्स स्पेस में लॉन्च किए और वो सैटेलाइट्स हमें मदद करते हैं इन सारी चीजों में। अभी टेलीफोन, वी आर कंडक्टिंग द ऑनलाइन क्लास, व्हाई इट इज पॉसिबल, किसकी वजह से ये पॉसिबल है? यहां से मेरे मोबाइल से या फिर मेरे कंप्यूटर से जो सिग्नल जा रहा है दैट इज गोइंग टू द सर्विस ऑपरेटर, ओके, और द सर्विस प्रोवाइडर, उसके स्टेशन पे जा रहा है, उसके स्टेशन से वो सिग्नल जा रहा है सैटेलाइट पे, एंड सैटेलाइट से वो सिग्नल आ रहा है द सर्विस प्रोवाइडर स्टेशन नियर यू, एंड फ्रॉम वहां उस सर्विस स्टेशन से आपके मोबाइल में वो सिग्नल आ रहा है। ओके, सो इसमें मेडिएटर कौन है? मेडिएटर इज सैटेलाइट। सैटेलाइट का बहुत बड़ा रोल है। ठीक है, अगर आप यहाँ पे देखेंगे सो ये आपका सर्विस प्रोवाइडर का स्टेशन है। ठीक है, सो इससे सिग्नल जाएगा सैटेलाइट को, सैटेलाइट से सिग्नल आएगा आपके नियरेस्ट टावर को, और टावर से सिग्नल मिलेगा आपके मोबाइल को। ओके, सो इस तरह से ये जो है कम्युनिकेशन होता है। नाउ नीड एंड इंपॉर्टेंस ऑफ स्पेस मिशन। अभी एक्चुअल में जरूरत क्या है कि ऐसा तो जरूरी नहीं है कि हम सिर्फ जाना चाहते हैं स्पेस में इसलिए हम लोग जा रहे हैं। ओके, दिस इज नॉट ट्रू। सो कुछ ना कुछ इंपॉर्टेंस भी रहेगा स्पेस मिशन का, तो देखते क्या इंपॉर्टेंस है। द वर्ल्ड हैज बिकम अ ग्लोबल विलेज ड्यू टू स्पेस मिशंस। टुडे we can contact a person in any part of world within a second. We can gather information about worldwide events sitting at home. You all know the importance of internet. Due to internet, every information is available at our fingertips. It has become possible to get advance alert about natural calamities and take proper precautions. During war, it is possible to get information about the actions of the enemy through aerial surveillance using satellites. It is also possible to explore fossil reserves and minerals in the earth. Thus, there are unlimited applications of space missions. Today, space technology is inevitable part of development of nation. So, जब हमारा इंडिया इंडिपेंडेंट हुआ था 1947 में, ओके, सो 1947 में हम अंग्रेजों से इंडिपेंडेंट हो गए, बराबर। सो तब जो हमारे इंडिया की हालत थी वो बहुत ही पुअर थी, बहुत ही गरीब देश था हमारा तब। ओके, जब हम इंडिपेंडेंट हुए थे तो उस अभी आप लोगों को पता है ये जो स्पेस मिशंस रहते हैं दे आर वेरी कॉस्टली, इजंट इट? दे आर वेरी वेरी कॉस्टली। सो हमारे जैसे गरीब देश को स्पेस मिशंस में जाना चाहिए या फिर नहीं जाना चाहिए, ये बहुत बड़ा सवाल था बैक देन। ओके, कि हम अफोर्ड कर पाएंगे या फिर नहीं कर पाएंगे। लेकिन कुछ ऐसे अच्छे लोग थे जिन्होंने कि इस स्पेस मिशन का इंपॉर्टेंस हमारे गवर्नमेंट को समझाया। ओके, सो उन लोगों के बारे में हम सीखेंगे। द लीडिंग रोल इन द स्पेस मिशन फॉर इंडिया इज ऑफ डॉक्टर विक्रम साराभाई एंड डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा। ओके, ये दो लोग जो थे इन्होंने इनिशिएटिव लिया फॉर आवर इंडियन स्पेस प्रोग्राम, और इन्होंने हमारे गवर्नमेंट को समझाया कि किस तरह से हम स्पेस का इस्तेमाल कर सकते हैं
फॉर द गुड और डेवलपमेंट ऑफ आवर नेशन। ओके, सो तब के जो प्रधानमंत्री थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू हो या फिर इंदिरा गांधी जी, इन लोगों को ये बातें समझ में आ गई कि नहीं, ये जो लोग कह रहे हैं, ये जो साइंटिस्ट कह रहे हैं वो सही है, हमें स्पेस मिशन की जरूरत है। इसके लिए उन्होंने अप्रूवल दे दिया, और तब जाके हमारा जो ISRO है, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, वहां पे है जहां पे वो आज है। ओके, सो इन लोगों की वजह से ही ये सब कुछ हो पाया। सो एक्चुअल में उन्होंने क्या समझाया उन लोगों को कि क्यों जरूरत है? सो देखिए, मैं आपको कुछ एग्जांपल्स बताता हूं, जिससे कि आपको भी समझ में आ जाएगा कि स्पेस मिशन बहुत जरूरी है। तो जब आप लोग इसके बारे में सर्च कर सकते हैं, जब राकेश शर्मा 1984 में स्पेस में गए थे, तो उन्होंने वहां से इंदिरा गांधी जी ने उन्हें पूछा था। इंदिरा गांधी वाज द प्राइम मिनिस्टर बैक देन ऑफ इंडिया। सो उन्होंने क्या पूछा था पता है राकेश शर्मा को? उन्होंने पूछा था, हिंदी में पूछा था कि ऊपर से भारत कैसा दिखता है आपको? ओके, राकेश शर्मा को उन्होंने पूछा था कि ऊपर से भारत कैसे दिखता है आपको? तो राकेश शर्मा ने क्या कहा था पता है? राकेश शर्मा ने कहा था, सारे जहां से अच्छा। मतलब कि जो सॉन्ग है ना, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, तो राकेश शर्मा ने वहां पे वो यूज किया था वर्ड कि सारे जहां से अच्छा मेरा हिंदुस्तान दिखता है। सो उनकी वजह से वो सॉन्ग नहीं बना है, सॉन्ग तो पहले ही बन चुका था, लेकिन वो सॉन्ग में से उन्होंने एक लाइन यूज की थी। ओके, सो मैं राकेश शर्मा का आपको एग्जांपल इसलिए बता रहा हूं कि जब वो स्पेस मिशन पे थे 1984 में, तो उन्होंने इंडिया के राइट साइड में बर्मा, मतलब बैक देन बर्मा कहा जाता था, अब उसे म्यांमार कहा जाता है, म्यांमार देश। ओके, तो म्यांमार में एक जंगल में आग लगी थी, म्यांमार के एक जंगल में आग लगी थी, और वहां से जो आग का जो धुआं है वो ऊपर आ रहा था, मतलब स्पेस में, आकाश में आ रहा था, स्काई में आ रहा था। तो वो वहां से हमारे राकेश शर्मा ने देखा, और राकेश शर्मा ने देखा और यहाँ पे नीचे इन्फॉर्म किया कि बर्मा के इस एरिया में कुछ आग लगी है। ओके, सो उस आग को मतलब समय रहते ही बुझा दिया गया, या फिर उसको कंट्रोल कर लिया गया। ठीक है, सो मतलब ये एक यूज था, बराबर। आफ्टर दैट व्हाट आर अदर? ओके, ड्यूरिंग वॉर, वॉर में भी देखिए आपने, परमाणु मूवी किसने देखा है? परमाणु मूवी, हैव एनीवन सीन परमाणु मूवी? आप लोगों में से किसी ने देखा है परमाणु मूवी? ओके, सब लोगों ने देखा है, ठीक है, वेरी गुड। अगर किसी ने नहीं भी देखा है तो डोंट, नो प्रॉब्लम, आप कभी देख लीजिए। ओके, परमाणु मूवी, तो उसमें क्या दिखाया गया है कि जो USA है, ओके, यूएसए इज अगेंस्ट द न्यूक्लियर टेस्टिंग ऑफ अदर नेशंस। ओके, मतलब कि न्यूक्लियर टेस्टिंग नहीं होनी चाहिए, ऐसा यूएसए का कहना था। तो उनके लिए, उसके लिए वो क्या करते थे कि वो सैटेलाइट की मदद से बाकी सारे देशों पे नजर रखते थे, सर्वेलेंस रखते थे कि यूजिंग सैटेलाइट्स की कोई देश न्यूक्लियर टेस्टिंग की तैयारी तो नहीं कर रहा है। ओके, सो दैट वो उनका एजेंडा था कि मतलब कोई भी देश जो है वो न्यूक्लियर पावर में सक्षम ना बन सके। ओके, अगर कोई देश न्यूक्लियर पावर में सक्षम हो जाता है तो उनकी टक्कर का बन जाएगा ना। सो वो नहीं चाहते थे। सो 1964 में, सॉरी 74 में आई थिंक, पहली बार न्यूक्लियर टेस्टिंग इंडिया ने करने की ट्राई की थी, लेकिन वो फेल हो गई। लेकिन 1996 में जब अटल बिहारी वाजपेयी हमारे प्राइम मिनिस्टर थे, तब की वो न्यूक्लियर टेस्टिंग जो है वो सक्सेसफुल रही थी, बराबर। न्यूक्लियर टेस्ट जो है वो तब का सक्सेसफुल रहा था, और उसी न्यूक्लियर टेस्ट पे बेस्ड वो मूवी है परमाणु। ओके, कि किस तरह से वो न्यूक्लियर टेस्ट हुआ था। तो उसमें क्या दिखाया गया है कि अमेरिका जो है, अमेरिका इज सर्वेलिंग ऑन इंडिया विद द हेल्प ऑफ सैटेलाइट्स। मतलब कि सैटेलाइट की मदद से वो इंडिया पे नजर रख रहे हैं, और उनके सैटेलाइट उस समय में इतने ज्यादा पावरफुल थे कि मतलब अगर आपने, आपके हाथ में घड़ी पहनी है, तो वो सैटेलाइट उस घड़ी में क्या टाइम है अभी, मतलब कितना छोटा होता है ना, घड़ी का कांटा एकदम बारीक होता है, लेकिन उनके पास इतनी पावर थी कि वो एक घड़ी, मतलब वो दो घड़ी के कांटे भी देख सकते थे और बता सकते थे कि आपकी घड़ी में अभी कितना टाइम हुआ है। मतलब इतने पावरफुल उनके सैटेलाइट्स तब थे। ठीक है, अभी भी तो आप, मतलब सैटेलाइट्स अभी भी बहुत पावरफुल है, लेकिन मैं तब की बात कर रहा हूँ। तो उन्होंने क्या किया था उस मूवी में, सिर्फ यही दिखाया गया है कि वो जो सैटेलाइट रहता है, सैटेलाइट दैट रिवॉल्व्स अराउंड द अर्थ, उसके लिए एक ब्लाइंड स्पॉट रहता है। ब्लाइंड स्पॉट यानी कि जहां पे न्यूक्लियर टेस्टिंग हो रही थी। ओके, परमाणु में वो कौन सा शहर बताया है अभी मुझे? पोखरन, पोखरन, बराबर। पोखरन में वो टेस्टिंग होने वाली थी। तो ब्लाइंड स्पॉट में क्या होता है? ब्लाइंड स्पॉट में वो जो सैटेलाइट की नजर रहती है, वो उस सैटेलाइट की नजर
उस पर्टिकुलर लोकेशन से कुछ देर के लिए हट जाती है। वो ब्लाइंड स्पॉट था आई थिंक 1 और 2 आवर्स का, बराबर, मूवी में अच्छे से बताया गया है, मैंने बहुत पहले देखा है, अभी मुझे याद भी नहीं है। सो 1 और 2 आवर्स का वो ब्लाइंड स्पॉट रहता है। वो जो ब्लाइंड स्पॉट है, वो हमारे साइंटिस्ट फाइंड आउट करते थे कि ब्लाइंड ब्लाइंड स्पॉट कब आने वाला है। सो जैसे ही ब्लाइंड स्पॉट आ जाए, मतलब कि उस सैटेलाइट की नजर कुछ समय के लिए उस जगह से हट जाए, तो तब वो सारा अपना इक्विपमेंट्स बाहर निकालते थे और वो प्रिपरेशन करते थे कि हम न्यूक्लियर टेस्ट कर सके। ओके, सो इस तरीके से उन्होंने लगभग मुझे लगता है कुछ 15 या 20 दिन कुछ तो किया था। सो मतलब एक एक घंटा ही वर्क करना है। जैसे ही सैटेलाइट की नजर वहां पे आ रही है, तो सारी चीजें जगह की जगह पे रहनी चाहिए। मतलब कि अगर कुछ चीजें मूव होती है तो नासा को या फिर वो कह सकते हैं कि अमेरिका को शक हो जाएगा कि यहाँ पे कुछ ना कुछ तो हलचल हो रही है। सो वो क्या करते थे कि उस एक घंटे में जो कुछ भी काम हुआ है उसके बाद में सारी चीजें सेम जगह पे रहनी चाहिए जैसे कि पहले थी। ओके, तो जैसे कि सैटेलाइट की नजर आएगी तो उन्हें लगेगा नहीं, यहाँ पे तो कुछ मूवमेंट हुई ही नहीं है। तो इस तरह से टेस्टिंग की थी। सो दैट इज अगेन वन advantage or use of satellites. Okay, so this is very interesting topic. We will discuss about this in the next lecture. Mostly we will have the next lecture tomorrow, or we have a fixed lecture on Monday. Okay, so I hope you are enjoying the space mission chapter. Okay, I am enjoying too much while teaching this to you. Okay, so that's it, that's it for today, and I will see you in the next lecture. Till then, bye bye everyone, bye bye.